this tables. Its name's too long, so let me rename this. So first of all, this AdventureWorks CSV file, which includes all our sales tables. So let's I rename this as a sales fact. Now I rename this calendar table as a calendar, customer table as a customer team, basically, because those are the dimension tables. So we rename those dimension table as a customer dim. Let's rename this product category dim, then product subcategory dim, product. Why I'm renaming those tables? Because name is too long for this table, and to understand the table we need only the what actually include in that table, what kind of a data in that tables. That's why we just renaming those tables to indicate what's the data inside it and what it table. So sorry, this is not the dimension table, it is the return table. So just fact, return facts, and this is a title. Okay, so prior to this, I already explained you what is the transaction table and what is the dimension table, right? In I think last two lectures we covered that part. Now you clear with this transaction tables and dimension table things, right? Or still you having some doubt regarding this dimension tables and transaction table? We also see the primary key and the reference of the foreign key used in a different tables, right? So in short, dimension tables contains the attributes and the transaction table contains the business values. Attributes, what I mean to say, एट्रीब्यूट्स का मतलब प्रॉपर्टीज. सो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिम, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिम में ऑल द इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइमरी की यूज की हुई है एंड ईच रिकॉर्ड इज यूनिक है. यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, हर एक प्रोडक्ट का नंबर दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिपीटेटिव रिकॉर्ड्स नहीं है यहाँ पे. ओनली इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग. if I filter this row, let's say for example for 214 products, so I'll get only one record. But same way in a sales fact table for this particular product, I'll get multiple records because this is the transaction tables and it contains the business value. That means ah ಏನಂತಾರ ಅದ. Okay, so what I mean to say is product tables contains only the unique records and transaction table contains only, just a minute. लवकर 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 क्लास चालू आहे माझा. Okay, so let me tell you regarding the modeling part. So modeling part, it means in Power BI desktop applications we have these four views, right? First is the report view, second one is the table view, and third one is this model view. You are familiar with this report view because this is the canvas where we built visualizations. This second view, data view, where you can able to see all the tables
which you all having the data regarding data inside the tables, all the columns, all the rows. And this third view table, this model view, it contains all the tables and the relationship between the tables. So what I mean to the relationships, it means we create a connection between two tables with the common column. So let me just arrange it properly. So in this model view, you can able to see all the tables which you already uploaded in Power BI desktop applications after the Power Query editor operations. So those are the tables which we all having. I'll keep this unpivot demo aside because we don't require it in actual modeling. So we just arranging those tables. You can able to see there are automatically detected relationships created. Power BI automatically detect relationship between the tables and it will create a relationships, but we always prefer to do it ourselves manually, because once you do the relationships on your own, then you can able to understand that how the tables are connected to each other, how you need to create a logic when you want to perform some kind of calculations, or you want to create a calculation based upon which involves multiple tables. Then firstly you need to understand the relationships between the tables, then and then only you can able to create the logic, right? So let's say I am deleting all the relationships that are already created, existing relationships. Create, delete this, and we see one by one how the things are created over here. You can right click on that particular relationships and you delete it. Okay, we just arrange those tables to create a relationships. Let's say this is my transaction table and this is also my transaction tables. Fine. So we have calendars, customers, territories, returns, product subcategory, product, and sales fact. Those are tables with you. Now we want to create a relationship between the tables. So first of all, let's understand, always dimension tables are connected with the transaction tables. So let's say in visualization, let's say I am taking one chart, let's say this charts I'm taking, okay, and I'm in a sales fact tables, I am having a different columns, right? In that columns we have this order quantity. So in order to calculate, let's say, let's understand from this table. So we, in our sales fact tables, we have this order quantity column. So this basically order quantity, what it is saying that, let's say for this order date 3rd of January 2016, order number is this, which product we got the order, product number 352, which customer it bought, 13622, this customer is bought this product, which region, this is the 9 regions, and the item order quantity, how much quantity he ordered. Okay, so basically if we wanted to calculate the total order quantity, so what we did, simply the summation of this particular column, right? So in short, order quantity column का अगर मैं sum ले लिया तो मुझे total order quantity मिलेगा, जो मुझे बताएगा कि टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है बाय डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स, ये कस्टमर्स ने कितना प्रोडक्ट बॉट किया हुआ है, वो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मुझे मिलेगी. सो आई जस्ट सिंपली ड्रैग दिस न्यूमेरिक कॉलम, this order quantity columns in a y axis. So it is nothing but
this charts what it is showing, x-axis and y-axis, right? Normally when we create a chart we have x-axis and y-axis. So if I'm using this column chart, what it indicates, y-axis जो भी आपकी order quantity होगी वो y-axis पे ऐसे show करेगी. And let's say I want to see which territory wise I want to see, or let's say year wise I want to see different order quantity. So what I'll put in the same table, I'll put order quantity and year in x-axis and y-axis respective. So what it's showing, it's showing me different years categories. So let me on the data label. So what it's showing that, so 2015 is 3k, 2016 is 36k, 17 45k, right? So now I want to understand that over here just year, right? So instead of year, let's me put this customer key. We have plenty of a customer, so instead of customer key I'm just grabbing the territory key, right? So it is showing that, let's say this two number territory having 0k 0k something kuch order of, this is four number territory key having 36k. So what actually this chart is showing, territory key, territory wise order quantity, but from this charts I'm not able to understand that what is this 2 means for, what is this 4 is, what is this 6 is, right? Because simply seeing the numbers I'm not able to understand that which country or which territory order maximum order or quantity, right? So for example this 37k is over here, but I'm not able to understand that which territory is this, right? Because it is only showing the number, 9 number is showing over here and some order quantity is there, but 9 number is for what territory I am not sure, because unless and until I am able to see this टेरिटरी टेबल जिसमें मेरे सारे कीज मेंशन है, जैसे कि मैं टेरिटरीज टेबल में जा रहा हूँ अभी, जो टेरिटरीज टेबल मुझे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे टेरिटरीज की शो कर रहा है. देन नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज मन दिस ऑस्ट्रेलिया रीजन having the highest number of order quantity. But over here I can able to see only the numbers, because in sales fact tables we only have order quantity and territory key, but regarding all the information for that particular territory is available in territory deal. Now if I am now taking this, let's say, country from this territory team over here instead of this territory key, what it's showing, it's showing me all the country name, right? But it's showing me same order quantity for all the countries. Why it is happening? Because there is no relationship between those two tables. Country columns came from territory dim and your order quantity is from sales fact table. Unless and until there is a relationship between those two tables or connection between those two tables, then and then we'll be able to, this chart able to show you the proper information. So that's why we need to create a connection between different tables to see the proper results in visualization. And that's why this modeling part is so much important. It is also called as a heart of your report. Your modeling is correct, then you can able to get the correct result. If your modeling having issue, then you're never able to get the results properly. So you need to more focus, more conscious about this modeling part, how you connected the tables. Okay, so let's understand by creating some relationship between the tables. First of all, let's understand what are the different types we have in a modeling. So mainly, if I'm talking about the types of relationship, so there are two types of relationships. First is the active relationships. Second is the non-active relationships. Okay, those are the main types for the relationships. And based upon these types, there are different cardinality. So cardinality is nothing but when you're creating a connection between two tables on the basis of common columns, how the values for those common columns, those tables having. It means, let's say I'm creating a relationship between
dimension tables and the sales fact or the transaction tables. So I know that these dimension tables having the unique records and transaction tables having the duplicate records, right? So let's I want to connect this territory team to this sales fact transaction tables. I'm having a sales territory key in territory team and a territory key over here in a sales fact. So based upon these common columns, I can create relationships or the connection between these two tables. Why we require this relationship? Because transaction tables contain only the key, but regarding this key contains only the numbers, right? 1 to 9 numbers are there, but what one indicates, what two indicates, those informations are over here. And when we trying to visualize such a things without the relationships, it's showing me all the values same for all the countries. This is not the correct result, right? This is not the correct result. Australia having some different value, Canada having some different value. That's why we're creating a relationship between those two tables based upon the key, this territory key. Because sales territory key in the territory team having the unique records, it is used as a primary key, and this primary key used in the transaction table as a foreign key. So how we created? First, the first way is you can simply drag those sales, select and drag this sales territory key on the territory key of the sales fact tables. This is the first way to create the relationships. Once you do that, one pop-up window is in front of you, and again the sales territory showing the both tables, territory team and the sales fact tables, and the sales territory and territory key are the selected one. Okay, those, because both those you drag the sales territory key on this territory key, you see the cardinality over is one to many and cross filter direction is single. So we are talking about this cardinality also. First me let me create this relationship and then we'll talk about how what is mean one to many, what it means to us. So let's see, let's save this. Now this relationship is created. When you observe this, let me zoom it little bit. When you observe it, you see there is one indicate over here and star indicate in the transaction table side. Why it is so? Because it is showing it means this dimension table, this territory tables having unique sales territory key, and its star denotes territory key is in the form of duplications over here in transaction table. That's why it is showing one over here for the dimension table and star for transaction table. How we read it? If we read it from territory dim to sales fact tables, we say that relationship is one to many relationships. When we considering territory dim as a first table and sales fact table as a second table. If we read this say relationship from the sales fact table to territory dim, we say that relationship is many to one relationships. This direction, this arrow you see, this is called filter direction. When there is one to many relationships formed between two tables, the directions is always from one side to many side. Okay, so how this relationship helpful? Once I create these relationships, you can able to see in report view, you can see this now this visuals able to see me the correct results. Let's say United States, Australia, it's showing me different value for different country, because we create a relationship, proper relationships between these territory teams and sales track tables. So those two cardinality, first is the one to many and second is the many to one. Those are the types for the cardinality. And this relationships is in the form of solid line, black solid line. It indicate this is the active relationships. When you right click on these relationships and go to the properties itself, again this relationships are edited. This pop-up window is came in front of you and it's showing that this relationship is active. You see this is the check mark is active over here, make this relationship active. If you deactivated it, if you remove this check mark over here and save it, you can able to see the relationships are in the dotted format. So whenever you see the relationships is in the dotted format, you can understand that this relationship is in the inactive state. So type of relationships are two: active relationships and non-active relationships. How you identify active relationships? Active relationships are the solid lines, solid black lines. And how you identify non-active relationships?
Non-active relationships are the dotted lines relationships. Then which relationships needs to be considered? So always which those relationships which are the active relationships, those are considered in an actual calculation. So when I inactive these relationships and I again go to this report view, you can able to see again this is the same results. When there is no relationship between the tables, you you can see the same results. But once I active these relationships, the results are going to change, because this relationships is in a active state. Once I do it in active way, the relationship again the results are changing and showing me the proper result. Okay, so you understand how the relationships are very important. What are the different types for relationships? First is the active one, second one is the non-active one. There are different cardinality. What cardinality means, the relationships, what are the different uh, ways to denote the relationship. First is the, let's say this one indicate and this is the star. One is for the unique record, star is for the mini record, duplicate records. When I'm reading the relationships, I can say there are one to many relationships when I reading from territory team to sales fact team. When I read it from the sales fact table to territory team, I can say that relationships can be the many to one. Those are the two cardinality, one to many and many to one. Rather than this, there are two more cardinalities, that is one to one and many to many. Why one to one? Because sometimes when I'm connecting, let's say, let's consider an example. Now you can understand, right? सब लोगों को ये समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को आज? हेलो? सर जरा फास्ट हो रहा है सर आज थोड़ा। फास्ट हो रहा है? हाँ सर। ठीक है. सो लेट्स से अंडरस्टैंड डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, ये कंसेप्ट तो सब लोगों को क्लियर है ना? यस सर। डायमेंशन टेबल में हमारे यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल्स में हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं. डायमेंशन टेबल में हमने प्राइमरी की यूज़ की होती है, वो जो सेम प्राइमरी की जो ट्रांजैक्शन टेबल्स में एज अ रेफरेंस की यूज़ की होती है, उन दोनों को यूज़ करके हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं. रिलेशनशिप्स के दो टाइप है. फर्स्ट इज द एक्टिव रिलेशनशिप्स, सेकंड वन इज द इनएक्टिव रिलेशनशिप्स. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी रिलेशनशिप एक्टिव है कौन सी नहीं? जो रिलेशनशिप सॉलिड लाइन से बनी होती है उसको हम एक्टिव रिलेशनशिप कहते हैं. जो डॉटेड लाइन से बनी होती है उसको हम इनएक्टिव रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द कार्डिनलिटी कि ये कार्डिनलिटी क्या है. जब मैं कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म करता हूँ दो टेबल्स के बीच में, जैसे कि मैंने अभी टेरिटरी डीम एंड ट्रांजैक्शन टेबल जो सेल्स फैक्ट टेबल है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म की. कैसे फॉर्म की? मैंने सेल्स टेरिटरी की को ट्रैक किया इस टेरिटरी की के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, दो कॉमन कॉलम्स. ये एक वे है रिलेशनशिप बनाने का. दूसरा वे है, लेट मी डिलीट दिस रिलेशनशिप्स एंड यूज अनदर वे. यहाँ पे ऊपर आपके पास मैनेज रिलेशनशिप का एक बटन होता है. आप उस पर क्लिक करो, देन अगेन सेम एक विंडो ओपन होगी आपको कि आपको एक रिलेशनशिप बनानी है. हाँ, मुझे एक रिलेशनशिप बनानी है, नई रिलेशनशिप बनानी है. सो आई यूज दिस न्यू रिलेशनशिप बटन. ओवर हियर आई कैन सेलेक्ट द टेबल्स फ्रॉम द लिस्ट. सो लेट्स से मुझे टेरिटरी डिम से रिलेशनशिप बनानी है मेरे सेल्स फैक्ट टेबल पर. तो दोनों टेबल्स का डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा. इसमें से मुझे चूज करना है कि कॉमन कॉलम कौन सा है. सो टेरिटरी टीम के अंदर का मेरा कॉलम है सेल्स टेरिटरी की, एंड ट्रांजैक्शन टेबल में मेरे पास है टेरिटरी की. ये दो कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए. जैसे मैं दो कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो बेस अपॉन द वैल्यू, इस कॉलम्स में जो वैल्यूज है, जैसे डायमेंशन टेबल में यूनिक रिकॉर्ड्स है एंड सेल्स फैक्ट टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, तो बेस अपॉन दिस ये कार्डिनलिटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती है इन दोनों में. यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है वन टू मेनी रिलेशनशिप है. ये वन टेबल किसको कंसिडर कर रहा है? ये वन टेबल कंसिडर कर रहा है टेरिटरी को, क्योंकि यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड है. ट्रांजैक्शन टेबल को वो मेनी साइड कंसिडर कर रहा है या सेकंड टेबल कंसिडर कर रहा है, इसीलिए रिलेशनशिप यहाँ पे वन टू मेनी है. अगर लेट्स से फ्रॉम का टेबल जो है, ये फ्रॉम का टेबल लेट्स से मैंने यहाँ पे मैंने कैलेंडर टीम सेलेक्ट किया, ओके, एंड यहाँ पे मैंने सेल्स फैक्ट
ऊपर मैंने अभी सेल्स फैक्ट लिया और नीचे मैं ले रहा हूँ टेरिटरी। ये दो, पहले मैंने टेरिटरी ऊपर लिया था एंड सेल्स फैक्ट नीचे किया था, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप मुझे आ रहा था, क्योंकि ऊपर वाला जो टेबल था टेरिटरी उसमें यूनिक रिकॉर्ड थे। सेकंड वाला जो टेबल था टू टेबल, उसमें सेल्स फैक्ट था जिसमें यूनिक रिकॉर्ड थे। अभी मेरा टेबल फ्रॉम टेबल कौन सा है? ट्रांजैक्शन टेबल है, सेल्स फैक्ट वाला। टू टेबल है मेरा टेरिटरी वाला। मैं अगेन कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ दोनों के बीच में। नाउ यू कैन सी द कार्डिनलिटी इज मेनी टू वन। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन टेबल फ्रॉम टेबल मेरा जो है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, दैट्स वाई मेनी। टू टेबल मेरा टेरिटरीज डी में डायमेंशन टेबल है, इसमें यूनिक रिकॉर्ड्स है, इसलिए वन, इसलिए कार्डिनलिटी मेनी टू वन हुई है यहाँ पे। तो सिंपली आई क्लिक ऑन द सेव। कार्डिनलिटी देखो ये बन गई। फ्रॉम टेबल जो है मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है, सेल्स फैक्ट टेबल, टू टेबल है टेरिटरी डी। कौन से टेबल से कौन से टेबल तक रिलेशनशिप बनी हुई है? पहला टेबल ट्रांजैक्शन, सेकंड टेबल टेरिटरी। रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे मेनी है, तो मैं इसको बोलूंगा मेनी टू वन रिलेशनशिप है। कार्डिनलिटी देखो मेनी टू वन है। अगर मैंने पहला टेबल फ्रॉम टेबल जो है वो टेरिटरीज लिया होता और टू टेबल मैंने सेल्स फैक्ट लिया होता, तो ये रिलेशनशिप बनती वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। ये दो रिलेशनशिप्स और कार्डिनलिटी समझ में आई? Yes, sir. ओके, ये कार्डिनलिटी हमने तो देख ली कि वन टू मेनी एंड मेनी टू वन। नाउ देर आर टू मोर कार्डिनलिटी, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी। वन टू वन कब फॉर्म होगी? जब दोनों टेबल्स के अंदर यूनिक रिकॉर्ड होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल and product tables and the product category. So we have this product table, for example, and also we have this product category. In the product category key also we have over here product key, category key also over here. Product category. We create relationships. So new relationships मुझे create करनी है. First table is my product table. Let's say second table is my product category table. It is categories. Again one to many. So basically भी मेरे पास एग्जांपल नहीं है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि वन टू वन रिलेशनशिप्स क्या होती है। बेसिकली क्या होगा, जैसे मेरा ये डायमेंशन टेबल है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड्स, राइट? वैसे कोई एक और टेबल होगा जिसमें भी यूनिक रिकॉर्ड ही होंगे, वहाँ पे भी जो की यूज की होगी वो एज अ प्राइमरी की काम कर रही होगी। तो दो, जब मैं ऐसे दो टेबल्स को कनेक्ट करता हूँ तो उसमें वन टू वन रिलेशनशिप फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे मेनी साइड पे वन, सॉरी यूनिक साइड पे वन लिख के आया हुआ है, वैसे वहाँ पे दोनों टेबल्स में यूनिक डेटा है तो दोनों साइड्स वन वन लिख के आएगा, एंड वो रिलेशनशिप्स को हम बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप्स। वन टू वन रिलेशनशिप जैसे बनती है वैसे सेम वे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनती है। मेनी टू मेनी कैसे बनेगी? फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रिटर्न का टेबल है जिसमें मेरी प्रोडक्ट की है, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट की यहाँ पे भी डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है, एंड ये ट्रांजैक्शन टेबल में भी डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। तो अगर मैं दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, लेट्स से दिस प्रोडक्ट की मैंने ड्रैग किया इस प्रोडक्ट की के ऊपर, तो यू कैन सी द कार्डिनलिटी बिकम्स मेनी टू मेनी, क्योंकि रिटर्न का टेबल में जो प्रोडक्ट की है वो भी डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है,
सेल्स टेबल में भी जो प्रोडक्ट की वो भी डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, तो कार्डिनलिटी बनती मेनी टू मेनी। वी ऑलवेज अवॉइड मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी, हम क्रिएट नहीं करते मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी, बिकॉज इट इज ऑलवेज क्रिएट एम्बिग्यूअस रिलेशनशिप्स, वो हमेशा आपको एरर ही प्रोवाइड करेगा। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, आपके डेटा आपका जो मॉडल है उसमें आपको बनानी ही पड़ रही है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स, then and then only you can able to create, rather than we never use this relationships। many to many relationships हम यूज नहीं करते, हम one to one relationships कई बार यूज करते हैं, बट many to many relationships हम अवॉइड करते हैं, हम we never use many to many relationships। that's why बाकी किसी रिलेशनशिप्स को जब आप क्रिएट करते हो आपको ऐसा एक वार्निंग मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स फॉर्म होती है तो आपको एक ऐसी वार्निंग मैसेज आती है कि कार्डिनलिटी जो फॉर्म हो रही है इन दो टेबल्स के बीच में वो मेनी टू मेनी है। This should only be used if it is expected that neither columns, ये columns के नाम दिए हुए प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट की, contains unique value and that the significantly different behavior of many to many relationships is understood। ये एक वार्निंग मैसेज है कि unless and until you are pretty much sure about that those tables doesn't have the unique records and ये relationships आपको एक्टिव करनी है। once I save this, देखो ये एक से एक रिलेशनशिप बनेगी मेनी टू मेनी की, इसको मैं अगर जूम करूँ तो दोनों साइड स्टार हो गए यहाँ पे। क्यों स्टार है? क्योंकि दोनों कॉलम्स जो है कॉमन कॉलम जिसपे बेसिस पे मैंने कनेक्शन बनाया है दोनों में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, दैट्स वाई स्टार। सेम वे ऐसे ही वन टू वन बनेगी, किस केस में? दोनों टेबल्स में रहेंगे यूनिक रिकॉर्ड्स, यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे वन आएगा इंस्टेड ऑफ स्टार, ठीक है। तो always we avoid this kind of relationships many to many, we always prefer to do one to many relationships, understand। अगर किसी टेबल्स के बीच में many to many रिलेशनशिप फॉर्म होती है देन देर इज अ बेटर वे टू रिजॉल्व दिस। हम क्या करते हैं, एक डायमेंशन टेबल बीच में बनाते हैं, जैसे इस टेबल में भी प्रोडक्ट की है इस टेबल में भी प्रोडक्ट की है, तो दोनों टेबल में की प्रोडक्ट की को लेके हम एक यूनिक टेबल बनाते हैं जिसमें यूनिक प्रोडक्ट की हो, एंड देन हम उस टेबल को वन टू मेनी के साथ कनेक्ट करते हैं सेल्स पैक के साथ, अगेन वन टू मेनी से कनेक्ट करते हैं रिटर्न्स के साथ। अभी हमारे पास ऐसा ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है, वी हैव द प्रोडक्ट टेबल राइट। अगर मैं प्रोडक्ट टीम की बात करूँ तो प्रोडक्ट का जो टेबल है वो उस टेबल के अंदर दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट की है, एंड दिस प्रोडक्ट टेबल ऑल्सो डायमेंशन टेबल। सो मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट करूंगा एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग कनेक्टिंग डायरेक्ट दोज ट्रांजेक्शन टेबल्स, मैं या इस टेबल की प्रोडक्ट की कनेक्ट करूंगा सेल्स फैक्ट की प्रोडक्ट की के साथ जो रिलेशनशिप्स क्रिएट करेगी वन टू मेनी, you see one to many relationship बन गई, and now again this product key can connect to this return fact table जो again मुझे one to many relationship देगा, you see this is one to many। तो दोनों टेबल्स के बीच में एक ब्रिज टेबल बनेगा डायमेंशन टेबल जो दोनों टेबल्स को कनेक्ट होगा वन टू मेनी रिलेशनशिप के साथ। Understand how we avoid many to many relationships, because these questions may be many times asked in your interview that how you avoid many to many relationships, how you if there is a many to many relationships, how what you do to avoid this. So what you can do, you can create a bridge table between those two transaction tables, and then using the common columns or common key you can create one to relationship to individual tables। क्लियर है? सो हमने क्या देखा, दो टाइप की रिलेशनशिप देखी, एक्टिव नॉन एक्टिव, एंड फोर टाइप्स की कार्डिनलिटी देखी जो रिलेशनशिप बनती है हमारी एक्टिव रिलेशनशिप्स और नॉन एक्टिव रिलेशन जो भी बनेगी उसमें कार्डिनलिटी चार टाइप की होती है। फर्स्ट इज द वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, मेनी टू वन रिलेशनशिप्स, वन टू वन रिलेशनशिप्स एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। क्लियर है? टू टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कितनी है, फर्स्ट वन आंसर इज एक्टिव नॉन एक्टिव। टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी कितनी है, चार टाइप की, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी, ये चार टाइप की कार्डिनलिटी है, ठीक है। अगेन
one more questions always ask कि how many relationships are possible between two tables, कितनी relationships possible है दो tables के बीच में। तो आपको क्या लगता है कितनी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है दो टेबल्स के बीच में? चार। नहीं, दो सर, एक्टिव इनएक्टिव। एक्टिव नेगेटिव, but you need to answer me Depend on one to in depend the on form of activity. numbers. Two, sir. टू। Two. Okay, so the answer is there are many relationships can be possible between two tables, but only one relationships can be active. अगर मैंने दो रिलेशनशिप्स बना सकता हूँ, दो या तीन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में बना सकता हूँ दो टेबल्स के बीच में, अगर उन टेबल्स में कॉमन कॉलम्स है तो मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाएगी, लेकिन एक रिलेशनशिप एक्टिव रहेगी, बाकी की रिलेशनशिप जो है वो इनएक्टिव रहेंगी। कैसे? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैलेंडर टेबल है, इसमें डेट का कॉलम है, और हमारा जो ये ट्रांजैक्शन टेबल है सेल्स फैक्ट, इसमें दो डेट के कॉलम है, फर्स्ट इज द ऑर्डर डेट, सेकंड वन इज द स्टॉक डेट। अगर मैं इस डेट के कॉलम की रिलेशनशिप बनाता हूँ इस ऑर्डर डेट के साथ, तो पहली रिलेशनशिप जो बनेगी वो बनेगी मेरी वन टू मेनी, राइट? क्योंकि कैलेंडर डिम में मेरे यूनिक रिकॉर्ड्स है, ट्रांजैक्शन टेबल में डुप्लीकेशन के फॉर्म में ऑर्डर डेट्स। नाउ आई वांट टू कनेक्ट दिस कैलेंडर डिम की डेट विथ दिस स्टॉक डेट आल्सो। सो मैं अगर वापस से डेट के कॉलम को ले रहा हूँ एंड स्टॉक डेट पे लाके छोड़ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे वो रिलेशनशिप तो बना रहा है वन टू मेनी, लेकिन ये मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव वाला जो टैब है ना, उसमें चेक मार्क नहीं है। अगर मैं चेक मार्क करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे क्या रीजन देगा कि देर आर एम्बिग्यूअस पाथ बिटवीन सेल्स फैक्ट एंड कैलेंडर टिप। एम्बिग्यूअस पाथ मतलब देर आर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप एक्टिव फॉर्म में है, आप इस रिलेशनशिप को एक्टिव नहीं कर सकते, आपको इसको इनएक्टिव स्टेट में बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको सेव किया तो देखो ये सेकंड रिलेशनशिप जो बनी वो इनएक्टिव बनी। हो सकता है कि यहाँ पे और डेट हो, शिप डेट हो, मल्टीपल डेट्स हो सकती है ना, तो मल्टीपल्स रिलेशनशिप कैन बी पॉसिबल बिटवीन टू टेबल्स, बट ओनली वन रिलेशनशिप्स कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। सो दिस आंसर यू नीड टू बी टेल टू द इंटरव्यूअर। ओके, मेनी रिलेशनशिप्स, बहुत सारी रिलेशनशिप्स हम बना सकते हैं दो टेबल्स के बीच में, बट एक रिलेशनशिप ही एक्टिव होगी एट अ टाइम, बाकी सारी रिलेशनशिप जो होगी वो इनएक्टिव स्टेट में रहेंगी। क्लियर है? समझ में आया? वो हमेशा वन टू मेनी होगी क्या सर रिलेशनशिप जो एक्टिव होगी वो डिपेंड करता है कि आप जिस टेबल के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो हाँ। उस टेबल में कैसे डेटा है। जैसे कैलेंडर की रिलेशनशिप अगर मैं इस ट्रांजैक्शन टेबल में बना रहा हूँ तो कैलेंडर डिम में यूनिक डेटा है, यूनिक रिकॉर्ड से। इफ आई सी द कैलेंडर, कैलेंडर टेबल की अगर मैं डेट का कॉलम सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखो टोटल रोज मुझे 912 दिखा रहा है नीचे, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 912 ही दिखा रहा है ना। इन शॉर्ट हाँ हर एक रो जो है वो यूनिक है, हर एक डेट yes. यूनिक है, यहाँ पे डुप्लीकेशंस नहीं है। ऐसे हम्म। टेबल की रिलेशनशिप में अगर जिस टेबल से बना रहा हूँ ट्रांजैक्शन टेबल में, उसमें तो डुप्लीकेशन है, क्योंकि ऑर्डर नंबर ये सॉरी ऑर्डर डेट जो है वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल डेटा डुप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे वन आएगा। जैसे ये वन टू मेनी टू मेनी का मैंने एग्जांपल बोला कि जैसे अगर दोनों टेबल्स में डुप्लीकेशन डेटा है और आप रिलेशनशिप बना रहे हो उनमें, मेनी तो वो टू मेनी। रिलेशनशिप मेनी टू मेनी बनेगी। ओके, वी ऑलवेज प्रेफर टू डू वन टू मेनी रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप। मॉडल में वन टू मेनी रिलेशनशिप्स है देन मॉडल का परफॉर्मेंस जो होता है वो बेटर होता है, बेस्ट होता है। सो वी ऑलवेज प्रेफर अच्छा। that we can create one to many relationship between the tables। so हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल जो होते हैं हमारे, जैसे हमारे केस में ये सेल्स फैक्ट का और रिटर्न फैक्ट से दो ट्रांजैक्शन टेबल है, इनको सेंटर में रख दिया, और डायमेंशन टेबल जो है जो यूनिक वाले टेबल्स है उनको उनसे कवर कर लिया एंड देन रिलेशनशिप बनाई। ठीक है, यस सर। so let's make relationships more in detail। जैसे कैलेंडर डीम की रिलेशनशिप हमने सेल्स फैक्ट के साथ बनाई है। नाउ हमें कस्टमर का टेबल कनेक्ट करना है सेल्स फैक्ट के साथ एंड रिटर्न के साथ। तो अगर
ये कस्टमर का टेबल हम डायमेंशन टेबल बेसिकली क्यों कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें सिर्फ कस्टमर की है, राइट। अगर मुझे उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका फुल नेम चाहिए, उसका बर्थ डेट चाहिए, वट एवर द इन्फॉर्मेशन कस्टमर हैविंग, मुझे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजुअल्स पे दिखानी है, तो मुझे वो कॉलम्स लेने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से विजुअलाइजेशन में। अगर मैं विदाउट रिलेशनशिप्स कॉलम्स लूंगा तो वो कुछ शो ही नहीं करेगा मुझे, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए हमें डायमेंशन टेबल्स की रिलेशनशिप बनानी पड़ती है ट्रांजैक्शन टेबल के साथ इन ऑर्डर टू शो दैट इंफॉर्मेशन इन विजुअल्स। हम मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हैं डायमेंशन टेबल से टू रिप्रेजेंट इट मोर इफेक्टिवली। अगर मैं बस यहाँ पे नंबर्स दिखाऊं इंस्टेड ऑफ दिस कंट्री, मैंने बस नंबर शो किए यहाँ पे, तो वो पता नहीं चलेगा ना कौन सा नंबर किस कंट्री को डिनोट किया है। आपने यहाँ पे थोड़ी ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई कि 1 फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, 2 फॉर ऑस्ट्रेलिया, 3 फॉर कनाडा, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर आपने दी भी होगी इन्फॉर्मेशन तो उसको रीड करना पड़ना मुश्किल है, क्योंकि यूजर्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि 1 के लिए ऑस्ट्रेलिया है, 2 के लिए कनाडा है, वट एवर, तो उसको पहले तो उसको रीड करना पड़ेगा, देन उसको कंपेयर करना पड़ेगा, हमेशा क्रॉस चेक करते रहना ये नंबर क्या है। सो उससे बेटर मैं कॉलम्स ही ले लूँ इस कस्टम या टेरिटरी डिम से कंट्री का, जो मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नंबर मुझे नाम देगा उस कंट्री का। तो ये अंडरस्टैंड करना पाना आसान है कि यूनाइटेड स्टेट, दिस इज यूनाइटेड स्टेट, दिस इज कैनेडा, राइट। That's why we creating relationship between dimension tables and transaction tables. Now again, our customer team having customer key यहाँ पे primary key है, and transaction table में we also having customer key which is in the duplications form. So relationship कौन सी बनेगी इसमें, अगर मैंने इसमें एक relationship बनाई तो one to many, right? So because customer team having unique records, transaction tables having duplicate records, so relationships or the cardinality becomes one to many relationships. क्लियर है, समझ में आया कस्टमर की रिलेशनशिप सेल्स फैक्ट को कैसे हमने क्रिएट किया। ओके, नाउ अगेन लेट्स से दिस टेरिटरी, दिस रिटर्न का टेबल जो है हमारा, उसमें आल्सो हैविंग दिस टेरिटरी की। टेरिटरी की यहाँ पे क्यों है, क्योंकि रिटर्न का टेबल हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें क्या है, ऑर्डर डेट है, रिटर्न की क्वांटिटी है, कौन से जैसे कौन से रीजन से वो रिटर्न हुई है, उस रीजन का वहां पे नंबर दिया हुआ है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कौन से रीजन से वो डेटा आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न के टेबल की जो टेरिटरी की है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा टेरिटरी के डायमेंशन के साथ। आल्सो देयर इज अ प्रोडक्ट की यहाँ पे क्यों है कि हमें पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ है। यहाँ पे तो बस प्रोडक्ट की ही है, तो 477 प्रोडक्ट का डिटेल देखने के लिए मुझे इस डायमेंशन टेबल को, प्रोडक्ट के डायमेंशन टेबल को इस प्रोडक्ट की के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने किया है ऑलरेडी। हमने क्या किया है, इस प्रोडक्ट को हमने कनेक्ट किया है रिटर्न फैक्ट को एंड सेल्स फैक्ट को। अभी हमें कनेक्ट करना है इस टेरिटरी को रिटर्न के साथ। So again, I'll just grab this sales territory key and create a relationship between this territory key. Relationship becomes again one to many relationships because territory का tables मेरा unique records उसके अंदर है, रिटर्न का टेबल जो है उसमें डुप्लीकेशंस के फॉर्म में रिकॉर्ड्स है। तो रिलेशनशिप बिकम वन टू मेनी, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप बन गए हमारे, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट इज इन दैट रिलेशनशिप्स दोज प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। यू क्लियरली ऑब्जर्व दैट कि प्रोडक्ट कैटेगरी डिम जो है उसके अंदर जो मेरी कॉलम्स है वो है कैटेगरी नेम एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड सब कैटेगरी के अंदर कौन से कॉलम्स है, प्रोडक्ट कैटेगरी की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है एंड सब कैटेगरी का नेम है। ये पांचों की पांचों कॉलम्स कैटेगरीज के एंड सब कैटेगरीज के, ये ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन टेबल में प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो अगर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि कौन सी कैटेगरी जो है जिसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर है, अनलेस एंड अनटिल मेरी कोई रिलेशनशिप्स नहीं है अभी कैटेगरी के साथ और इस ट्रांजैक्शन टेबल के साथ, ना ही उसमें कैटेगरी के लिए कोई यहाँ पे प्राइमरी की यूज या रेफरेंस की यूज की हुई है, ट्रांजैक्शन टेबल में ओनली प्रोडक्ट की यूज की हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि कौन सी कैटेगरी का सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है या कौन सी कैटेगरी की सबसे ज्यादा रिटर्न है,
ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें इस कैटेगरी को कनेक्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। कैसे कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे इसको हायरार्की लेवल या हायरार्की के बेसिस पे। अभी ये हायरार्की क्या है? लेट्स से मेरे पास ईयर है, राइट? अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो हायरार्की मीन्स, जैसे मैं अगर ईयर की बात करूं तो ईयर के अंदर क्या होता है? ईयर के अंदर होते हैं मेरे क्वार्टर्स होते हैं, बराबर? ईयर्स के अंदर क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स के अंदर होते हैं मंथ्स, और मंथ्स के अंदर होता है डे। सो अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो यहाँ पे हायरार्की कैसे बनी? ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। हायरार्की का मीनिंग समझ में आ रहा है? हायरार्की मतलब क्या? कि जो मेजर है, जैसे ईयर है, ईयर के अंदर आते हैं 4 क्वार्टर्स, तो ईयर के नीचे चले गए क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के नीचे गए मंथ्स, और मंथ्स के नीचे गया डे। तो ये हायरार्की हुई फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वैसे ही अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, इस डेटा की बात करूं, तो यहाँ पे हायरार्की कैसे बनेगी? तो सबसे पहले आएगी प्रोडक्ट की कैटेगरी, राइट? मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी, लेट्स से मेरे पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। फर्स्ट इज लेट्स से क्लोथिंग है, देन बाइक्स है, राइट? जो हमने प्रोडक्ट का टेबल अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कैटेगरीज कितनी है मेरे पास? 4 कैटेगरीज को दिखा रहा है यहाँ पे। 4 कैटेगरीज है। कैटेगरी के नाम है बाइक्स, कंपोनेंट्स, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। ये 4 कैटेगरीज है। अभी हो सकता है ना कि ये कैटेगरीज की कुछ सब कैटेगरीज भी हो। कैटेगरी इन्वॉल्व्स ऑल द डिटेल्स। तो उसको बाइफरकेट कैसे किया कि कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज है जो कि मुझे सब कैटेगरीज में मिलेगी। अगर मैं सब कैटेगरीज का टेबल ओपन करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी का की है जो यूनिक है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी की भी है जो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट सब कैटेगरी के जो मेरा टेबल है यहाँ पे मैंने 1 के बेसिस पे फिल्टर किया। दिस 1 इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर का 1 कैटेगरी। 1 मतलब जो जो भी रहेगा उसका वैल्यू। जैसे मैंने 1 के लिए यहाँ पे फिल्टर किया, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है? 1 तो डुप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब कैटेगरी यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है। क्यों डुप्लीकेट हो रही है? क्योंकि एक कैटेगरी इंक्लूड्स मल्टीपल सब कैटेगरी। इस एक कैटेगरी के अंदर 3 सब कैटेगरी है। कैटेगरी 1 का नाम है बाइक, लेट्स से बाइक है। कैटेगरी के डिम में अगर मैं जाऊँ अगेन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैटेगरी की 1 किस लिए है? बाइक्स के लिए है। वही अगर मैं सब कैटेगरी में जाऊँ तो ये सब कैटेगरी, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर 3 टाइप की सब कैटेगरीज है, टूरिंग बाइक, रोड बाइक्स एंड माउंटेन बाइक। ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कि अगर मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी को कनेक्ट करना है सब कैटेगरी के बेसिस पे, सो आई कैन कनेक्ट ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी की बेसिस। तो रिलेशनशिप कौन सी बनेगी यहाँ पे? अगर मैंने इन 2 टेबल्स को कनेक्ट किया, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, बेस अपॉन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी की। यहाँ पे ये यूनिक फॉर्म में है प्रोडक्ट कैटेगरी की 1 2 3 4, बट यहाँ पे सब कैटेगरी लेवल पे वो डुप्लीकेट हो रही है। सो रिलेशनशिप कौन सी बनेगी बताओ? 1 to many. 1 टू मेनी, करेक्ट? तो अगर मैंने लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी की को मैंने ड्रैग किया इस प्रोडक्ट कैटेगरी की के बेसिस पे, यहाँ पे वो यूनिक फॉर्म में है प्रोडक्ट कैटेगरी टीम में, प्रोडक्ट सब कैटेगरी टीम में वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। दैट्स व्हाई कार्डिनलिटी बिकम 1 टू मेनी। फाइन, हमने कनेक्ट कर लिया प्रोडक्ट कैटेगरी को सब कैटेगरी को। नाउ अगेन इफ आई एम ऑब्जर्विंग दिस, लेट्स से अगेन गो टू द सब कैटेगरी लेवल। यहाँ पे मुझे वो सब कैटेगरी कितनी दिखा रहा है? यहाँ पे मल्टीपल सब कैटेगरी दिखा रहा है, राइट? एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। वही मैं अगर प्रोडक्ट के टेबल में जाऊं, नाउ आई विल गो टू द प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पे मेरे पास है सब कैटेगरी की। लेट मी रिमूव द फिल्टर, ओके? एंड इफ आई ड्रैग दिस सब कैटेगरी, जो 3 सब कैटेगरी हमारे पास थी 1 2 एंड 3, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया सब कैटेगरी, जो हमें कहाँ मिली थी? प्रोडक्ट कैटेगरी बाइक के लिए 3 सब कैटेगरी मिली थी 1 2 3। इन 3 सब कैटेगरीज को मैंने फिल्टर किया प्रोडक्ट के टेबल में जाके। यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उन 3 सब कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है।
कैन सी यहाँ पे इन 3 सब कैटेगरीज के लिए कितने प्रोडक्ट है, 293 रोज समथिंग कुछ है यहाँ पे। तो एक कैटेगरी है जिसकी मल्टीपल सब कैटेगरीज है एंड वो मल्टीपल सब कैटेगरीज कंटेन मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो हेरारकी कैसे हुई हमारी, प्रोडक्ट कैटेगरी टॉप पे आएगा, उसके नीचे आएगा सब कैटेगरी, उसके नीचे आएगा प्रोडक्ट। जैसे ईयर के बेसिस पे था, ईयर, क्वार्टर, मंथ्स, डे। यहाँ पे डे मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट। ईयर मतलब क्या हुआ, हमारी कैटेगरीज। एंड क्वार्टर्स और मंथ्स मतलब क्या हुआ, हमारी सब कैटेगरीज। तो अगेन मुझे अगर कनेक्ट करना है सब कैटेगरीज को इस प्रोडक्ट के साथ बेस अपॉन सब कैटेगरी की, तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल में दिस सब कैटेगरी इज अ यूनिक रिकॉर्ड। लेट मी शो यू। प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट की मल्टीपल डुप्लीकेशंस के फॉर्म में था, लेकिन ये सब कैटेगरी यहाँ पे प्राइमरी की काम कर रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी का टेबल है। यहाँ पे बस ऑल द सब कैटेगरीज है जिनको यूनिक नंबर दिया हुआ है। इफ आई रिमूव द फिल्टर्स and select this subcategory column, you see 37 rows, 37 distinct value। इसका मतलब क्या हुआ, सब कैटेगरी की जो है वो सब कैटेगरी के टेबल में एक्ट कर रही है एज अ प्राइमरी की, वही प्रोडक्ट के टेबल में एक्ट कर रही है एज अ रेफरेंस की और फॉरेन की, डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। तो अगर मैं रिलेशनशिप्स बनाता हूँ, अगर सब कैटेगरी की रिलेशनशिप बनाऊंगा प्रोडक्ट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सब कैटेगरी कॉलम, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की कॉलम, तो रिलेशनशिप कौन सी बनेगी अगर यहाँ पे, मेनी टू मेनी। वाई मेनी टू मेनी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की में सब कैटेगरी में भी हाँ हाँ हाँ, 1 2 3 यस यस, वन टू मेनी 1 to बनेगी, many, राइट। 1 to many, 1 to इसीलिए many, सॉरी प्रोडक्ट सब कैटेगरी में भी तो यूनिक रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड। डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। सो अगेन आई विल ड्रैग दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरी ऑन this subcategory key from the product। you see one to many cardinality form हो रही है, and simply I'll save it। now you observe this product category indirectly connect to this transaction tables through this product dim table। relationship कैसे बनी देखो, ये जो फिल्टर रहेगा, ये जो डायरेक्शन है एरो की, इस पे ध्यान दो। कैटेगरी का जो फिल्टर रहेगा, फिल्टर कैसे पास होता है, इस एरो के थ्रू पास होता है। इस एरो की जैसी डायरेक्शन रहेगी वैसे डायरेक्शन में पास होगा। अगर मैंने अभी एक टेबल बनाया जिसमें मैं लेट से यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ दिस कंट्री, मैंने ये जो अपना कैलेंडर या कैटेगरी डिम जो है ना, जिसमें बस कैटेगरी के नाम है, प्रोडक्ट कैटेगरीज के नाम है, इन कैटेगरीज के नाम को एक्स एक्सिस पे लिखा। तो ये देखो, मुझे ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सी कैटेगरी की कितनी ऑर्डर क्वांटिटीज है। ये फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ऑब्जर्व द फिल्ट्रेशन। ये कैटेगरी नेम हमने ये प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम को उठाया, यहाँ से उठाया इस कैटेगरी के टेबल से, और ऑर्डर क्वांटिटी हमने उठाया है इस ट्रांजैक्शन टेबल से। देखो ये रिलेशनशिप कैसे पास हो, ये कैटेगरी नेम का जो फिल्टर है वो पहले पास हुआ इस प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में। इसने क्या किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैटेगरी है ऑस्ट्रेलिया, कैटेगरी है वन कैटेगरी बाइक्स की कैटेगरी, तो वो क्या हुआ कि ये कैटेगरी का फिल्टर इस सब कैटेगरी में गया, यहाँ पे उसने फिल्टर किया कि बाइक्स के लिए कितनी मेरे पास सब कैटेगरीज है। अगेन ये सब कैटेगरीज जो है, ये सब कैटेगरीज का फिल्टर यहाँ से पास हुआ इस प्रोडक्ट टेबल में, जिसने क्या फिल्टर आउट किया, प्रोडक्ट को फिल्टर किया। कैटेगरी के बेसिस पे सब कैटेगरी फिल्टर हुआ, सब कैटेगरी के बेसिस पे प्रोडक्ट फिल्टर हुआ, एंड दोज फिल्टर प्रोडक्ट के बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन टेबल फिल्टर हुआ। देन उसने आपको बताया कि बाइक्स के लिए मेरे पास इतनी ऑर्डर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक वर्चुअल एक इमेजिनरी टेबल बना, हर एक कैटेगरी के लिए एक इमेजिनरी टेबल बना, बाइक्स के लिए एक टेबल बना, क्लोथिंग के लिए एक बना, एक्सेसरीज के लिए एक बना, वट एवर जितनी 4 कैटेगरीज है उन चारों के लिए एक एक वर्चुअल टेबल बना। एंड देन उस वर्चुअल टेबल में जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम था उसका समेशन होके मुझे ये रिजल्ट मिला है बैकएंड में। एक्सेसरीज के लिए 123 की, क्लोथिंग के लिए 27, बाइक्स के लिए 25 की। फिल्टर कैसे पास हुआ एक टेबल से दूसरे टेबल थ्रू द रिलेशनशिप्स, ये समझ में आया।
समझ में आया? हेलो, ये यस हो गई? थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है सर, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब फिर से देखना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूँ। रिलेशनशिप तो समझ में आई कि हमने रिलेशनशिप कैसी बनाई। रिलेशनशिप में तो कुछ डाउट नहीं है ना कि ये वन टू मेनी कैसे नहीं, बनी, नहीं। अगेन ये वन टू मेनी कैसे बनी। नाउ यस। अभी मुझे एनालाइज करना है ये रिलेशनशिप जब नहीं थी, ये रिलेशनशिप ऐसे मान के चलो कि ये रिलेशनशिप बनी नहीं है, हमने बस प्रोडक्ट टेबल को कनेक्ट किया हुआ है ट्रांजैक्शन टेबल में। तो ये दो जो टेबल थे, ये दो टेबल पूरे अलग ही थे इन रिलेशनशिप से। हमारा जो ट्रांजैक्शन टेबल है, जो सेल्स पैक का टेबल है, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए कोई कॉलम नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से हमारा ट्रांजैक्शन टेबल, ये सेल्स पैक्ट वाला जो टेबल है, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या? आपको कोई कॉलम ऐसा दिख रहा है क्या जो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी या सब कैटेगरी बताए? यहाँ पे क्या है, नो। बस प्रोडक्ट की है, राइट? प्रोडक्ट की मतलब ये जो प्रोडक्ट का अपना टेबल है, इसमें ये प्रोडक्ट की है जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कनेक्टेड है। अगर मुझे ऐसा एनालिसिस करना है, हम यहाँ इस रिलेशनशिप के बेसिस पे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, ये एनालिसिस कर सकते हैं अपन बेस अपॉन आवर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, दिस प्रोडक्ट टेबल की एंड दिस ट्रांजैक्शन टेबल की। बराबर, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट टेबल की रिलेशनशिप्स हमने ट्रांजैक्शन टेबल के साथ बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की के बेसिस पे रिलेशनशिप बनाई है, तो हम प्रोडक्ट के टेबल में से जो कॉलम्स ले सकते हैं, वो कॉलम्स कौन सा है? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की है ना, या प्रोडक्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बराबर, इसमें सब कैटेगरी के की है, प्रोडक्ट के टेबल में सब कैटेगरी का की है। तो मैं आएगा। अगर इस सब कैटेगरी के की को यहाँ पे डाल दूं, तो ये इंफॉर्मेशन क्या मुझे बताएगा कि कौन से सब कैटेगरी की कितनी वैल्यूज है। अगेन सब कैटेगरी की के लिए, सब कैटेगरी के नाम के लिए मुझे अगेन सब कैटेगरी का ये टेबल रेफर करना पड़ेगा ना, जिसमें सब कैटेगरी का नाम है। उसके लिए मुझे रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, राइट, इस प्रोडक्ट की इस सब कैटेगरी के साथ। बराबर। बराबर, नाउ अगेन ये रिलेशनशिप जब मेरी बन गई प्रोडक्ट सब कैटेगरी की इस प्रोडक्ट डीम के साथ, तो इस सब कैटेगरी के अंदर मेरी प्रोडक्ट की है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी की। तो मैं अगेन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस सब कैटेगरी की ये प्रोडक्ट की डाल सकता हूँ ना, जो सब कैटेगरी के अंदर है। ये 1 2 3 4 के फॉर्म में दिखाएगा मुझे। अभी मुझे इस 1 2 3 4 के नाम चाहिए कि ये 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए है। तो मुझे अगेन इस सब कैटेगरी की रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी इस कैटेगरी के साथ। बराबर, हम्म। तो मैंने वो रिलेशनशिप कैसे बनाई, प्रोडक्ट कैटेगरी की एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की दोनों में जो है वन टू मेनी रिलेशनशिप बनी। अभी जब रिलेशनशिप बन गई तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल के अंदर का प्रोडक्ट का नाम ले सकता हूँ ना, या कैटेगरी का नाम ले सकता हूँ ना, इस कैटेगरी डीम में जो नाम है इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट कैटेगरी की। तो वो मुझे इंफॉर्मेशन बताएगी इंस्टेड ऑफ नंबर, वो मुझे बताएगी कि 1 फॉर एक्सेसरीज, 2 फॉर क्लोथिंग, 3 फॉर बाइक्स, whatever. Then you can able to get this visualization। आपको क्या एनालिसिस करना था, किस कैटेगरी के लिए आपके पास कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है। तो वो तो डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल नहीं था, इसके लिए आपको प्रोडक्ट डिम में जाके सब कैटेगरी को कनेक्ट करना पड़ा इस सब कैटेगरी के साथ, क्योंकि इस सब कैटेगरी में प्रोडक्ट कैटेगरी की अवेलेबल थी। देन आपको इस सब कैटेगरी को कनेक्ट करना पड़ा इस कैटेगरी के साथ जिसमें कैटेगरी का नाम था। देन फिल्ट्रेशन ऐसे पास हुआ कि कैटेगरी नेम यहाँ पे फिल्टर हुआ
देन सब कैटेगरी फिल्टर हुआ, सब कैटेगरी ने इस प्रोडक्ट को फिल्टर किया एंड इस प्रोडक्ट ने फिल्टर किया इस ट्रांजैक्शन टेबल। अभी जो वर्चुअल टेबल की कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्या है, बेसिकली मैं बैकएंड में जो चीजें हो रही है आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी कंसिडर करते हैं एक्सेसरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेसरीज की जो ये 123 के जो क्वांटिटी है ना, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? क्वांटिटी देखो, इस पे ध्यान दो, ये ऑर्डर क्वांटिटी कितनी शो कर रही है यहाँ पे 122795 बराबर। ये 122795 जो ऑर्डर क्वांटिटी है ये हमारे ट्रांजैक्शन टेबल से कैलकुलेट होके आई है। ये कैसे कैलकुलेट हुई वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो एक्सेसरीज, लेट मैं टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक एक टेबल लेते हैं। एक्सेसरीज का जो मेरा कोड है उसके लिए क्या नंबर असाइन किया हुआ है, 4 नंबर असाइन है बराबर। ये क्लियर है सबको? एक्सेसरीज के लिए मेरा 4 नंबर है। तो फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, ये 4 नंबर फिल्टर करेगा मेरे प्रोडक्ट सब कैटेगरीज को। यहाँ पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ कैटेगरी की 4। यहाँ पे मुझे ये सब कैटेगरी की की मिली राइट, 37 36। लेट्स में इसको मैं असेंडिंग करता हूँ, असेंडिंग सॉर्ट किया मैंने। तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 37 तक, 26 के लिए तो 37 तक मुझे सब कैटेगरीज की मिली जब मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी 4 को फिल्टर किया। अभी ये सब कैटेगरी की जो है, जो मेरी कनेक्टेड है प्रोडक्ट टेबल के साथ, वो क्या करेगी, इन सब कैटेगरीज को फिल्टर करेगी बेस अपॉन दिस सब कैटेगरी की, इस प्रोडक्ट टेबल को फिल्टर करेगी। तो 26 से लेके 37 तक है ना, तो मैं प्रोडक्ट टेबल में गया, यहाँ पे मेरे पास जो सब कैटेगरीज है इनको मैंने फिल्टर किया, ठीक है। फिल्टर क्या किया, 26 से लेके 37 तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37 बराबर। ये सब कैटेगरीज मैंने फिल्टर की। तो इस फिल्ट्रेशन के बेसिस पे मुझे पता चला कि इतनी प्रोडक्ट की जो है वो यहाँ पे, इतने आइटम यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट की जितने आइटम यहाँ पे, ये 293 आइटम्स जो यहाँ पे, ये वटेवर जितने फिल्टर रोज है, 29 फिल्टर रोज आउट ऑफ 293, 29 आइटम्स यहाँ पे है उस सब कैटेगरी के लिए। इससे मैं इसको असेंडिंग कर रहा हूँ। तो 214 से लेके कुछ 541 तक प्रोडक्ट की है यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट की फिल्टर किसको करेगी, अब ये फिल्टर करेगी यहाँ पे। हम फिल्ट्रेशन कैसे करते आए, कैटेगरी की को फिल्टर किया, देन उस सब कैटेगरी को फिल्टर हुआ, उस सब कैटेगरी ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को फिल्टर किया, और जो फिल्टर प्रोडक्ट है वो फिल्टर प्रोडक्ट इसमें सेल्स फैक्ट के टेबल को फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्ट है, 214 15 बहुत सारे हैं, इनका फिल्ट्रेशन कैसे लगाए। तो इन शॉर्ट ये जितने भी 29 जो आइटम है यहाँ पे, लेट मी से, यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया, इतनी मेरे पास ये 29 रिकॉर्ड्स है राइट। तो मैं अभी यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ एक एक चीज़ को, ठीक है। वो जो अमाउंट थी वो कैसे आई वो हमें देखना है राइट। तो मैं अभी गया मेरे सेल्स फैक्ट के अंदर, सेल्स फैक्ट के अंदर यहाँ पे जो प्रोडक्ट की है उसको मैं फिल्टर कर रहा हूँ अभी, ठीक है।
समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, तुम लोग बोलोगे कि नहीं समझ में आया। बाद में जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे पूछो मुझे फिर। सर ये अभी क्या कर मतलब जो अभी सब कैटेगरी को हमने 4 को किया था ना, उसमें से 29 प्रोडक्ट्स मिले हमें, मतलब 214 से लेकर ऑनवर्ड्स 29 जितने हो गए। यस, हाँ, जैसे तो उसका इसमें क्या कर रहे हैं सर ये? इस मेन मैं वही प्रोडक्ट में? बता रहा हूँ। हाँ देखो अभी हाँ जो हमने यहाँ पे ये जो विजुअल बनाया था, ये विजुअल हमें क्या बता रहा है कि एक्सेसरीज ये जो हमारी कैटेगरी है, इसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी शो कर रहा है? वो 122795 शो कर रहा है। 122795। हाँ तो ये 122795 कैसे कैलकुलेट हुआ? हाँ ओके। ओके, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये इस रिलेशनशिप के थ्रू कैलकुलेट हुआ। कैसे? अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूं तो एक्सेसरीज के लिए की हाँ कौन सी बनी हुई है? 4 नंबर की बनी हुई है, हाँ बराबर। बराबर। तो उसने हाँ इस कैटेगरी टेबल में क्या किया, ये 4 नंबर का फिल्टर पास किया इस पास सब किया, सब कैटेगरी के टेबल कैटेगरी में 29 प्रोडक्ट्स थे। हाँ में। यस, जब हाँ मैं सब कैटेगरी को ओपन किया इस चार हाँ नंबर की फिल्ट्रेशन की बेसिस पे, तो मुझे हाँ कितने हाँ इतनी सब कैटेगरीज वहां पे मिली? 12 सब कैटेगरीज मिली, हाँ 12 मिली। हाँ जो इस 4 नंबर की कैटेगरी के अंदर है। अंदर है। हाँ तो ये 12 सब कैटेगरीज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी? इस प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट सब कैटेगरी की रिलेशनशिप बनी है प्रोडक्ट के साथ, हाँ क्योंकि हाँ सब हाँ कैटेगरी के बेसिस पे कनेक्टेड है ना वो। बराबर। तो जब मैंने इन 12 सब कैटेगरीज को फिल्टर किया, किस में किया मैंने फिल्टर? इस प्रोडक्ट में किया। यहाँ प्रोडक्ट पे में, हाँ मेन। सब हाँ हाँ कैटेगरी के बेसिस पे मैंने ये देखो यहाँ पे 12 जो फिल्ट्रेशन लगा है ना यहाँ पे, हाँ हाँ इनको फिल्टर किया। जब मैंने फिल्टर इन सब कैटेगरी को फिल्टर किया तो मुझे ये 29, 214। हाँ 29 प्रोडक्ट मिले। हाँ तो जब मैं इन 29 प्रोडक्ट को इस ट्रांजैक्शन टेबल में, सेल्स फैक्ट टेबल में, जिसकी रिलेशनशिप हमने बनाई है प्रोडक्ट टेबल्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल के बीच में बेस अपॉन दिस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की। जब हाँ मैं इन 29 प्रोडक्ट को यहाँ पे फिल्टर करूंगा ना, तो ये जो हाँ ऑर्डर क्वांटिटी की सम आएगी वो आएगी 122765। ओके, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी किस समय 123 के? यस, ओके। अभी समझ में आया ये रिलेशनशिप कैसे फिल्ट्रेशन पास करती है? यस ये यस विजुअल जो बन के आया है ये कैसे बना? ओके। इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया, फिल्टर जो पास होता है, इसको बोलते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी समझ में आया हम्म। रिलेशनशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके विजुअलाइजेशन में? सबको समझ में आया? समझ में तो आ रहा है सर, ये करके भी देखना पड़ेगा। करके देखो, रिलेशनशिप्स बनाओ, यस तभी सर। आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है, एक बार लेक्चर वापस सुनो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा हाँ आपको लगेगा। क्योंकि यस यही सर। अगर ठीक से समझोगे नहीं, ये अगर नहीं बना पाओगे तो रिपोर्ट नहीं बना पाओगे, विजुअल्स नहीं बना पाओगे। हम्म। बाकी के लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग चुप है, ज्यादा लेट हो गए इसलिए नाराज हो गए क्या? हेलो सर। बोलो। हाँ सर, हम दो टेबल में जो हम कॉलम, कॉमन कॉलम जो रहते हैं, हम्म, वो कॉलम का जो नेम है हम्म, वो अगर अलग अलग होगा तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा। अभी देखो ना, ये जो हमने टेरिटरी का रिलेशनशिप जो बनाया, टेरिटरी में कॉलम का नाम है सेल्स टेरिटरी की, लेकिन वो सेल्स फैक्ट और रिटर्न फैक्ट में है टेरिटरी की। यस। कॉलम के नाम डिफरेंट होने दो, कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू है वो मैटर करती है। अच्छा, मतलब डेटा सेम रहना चाहिए, नाम यस, कौन से भी हो। नाम कोई सा भी हो चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अभी आप सब लोगों के मन में यही डाउट होगा
कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलम को किस कॉलम के साथ कनेक्ट करना है, बराबर ना? यही मेन डाउट तो यही होगा कि हम कैसे पता करें कि कौन से टेबल्स को किस टेबल के साथ कनेक्ट करना है। तो जब आपको किसी क्लाइंट के से ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमें रिपोर्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट दी जाती है। उस बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट में आपको ये क्लियरली बताया जाता है कि कौन से टेबल्स आपको रेफर करने हैं ये रिपोर्ट को बनाने के लिए, उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कौन सी की वहाँ पे प्राइमरी की है, कौन सी की वहाँ पे रेफरेंस की यूज की हुई है, टेबल्स के बीच में कनेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। अगर मेंशन नहीं है भी तो आपको ये सारी चीज़ें क्लाइंट के साथ मीटिंग करके डिस्कशन करके फाइनलाइज करनी पड़ती है। और रिलेशनशिप जो है ये रिलेशनशिप वन गो में नहीं बनता, आप मल्टीपल ट्रायल्स एंड एरर्स इसमें करते हो, मल्टीपल टेबल्स के कनेक्शन करते हो, बहुत सारी कनेक्शंस गलत भी हो जाते हैं, फिर उनको सुधारते हो बाद में। सो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। एक बार आपका मॉडल बन गया देन यू कैन एबल टू स्टार्ट द रिपोर्टिंग। मॉडल ही बना नहीं तो रिपोर्टिंग स्टार्ट करके कुछ फायदा नहीं है, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो एक तो बीआरएस शीट में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, नहीं भी दी तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करके आपको ये फाइनलाइज करना पड़ता है कि रिलेशनशिप कैसा है टेबल्स का एक दूसरे के बीच में। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको डेटा जो है डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इस डेटा में मेरे डायमेंशन टेबल कौन से रहेंगे, मेरे ट्रांजैक्शन टेबल कौन से रहेंगे। मॉडल्स को आपको थोड़ा थोड़ा खुद से भी दिमाग में बनाना पड़ता है कि डायमेंशन टेबल मेरे लिए ये रहेंगे, ट्रांजैक्शन टेबल मेरा ये रहेगा जिसमें बिजनेस वैल्यूज है। देन उस हिसाब से आपको रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना होता है। ठीक है, इसमें ट्रायल एंड एरर्स बहुत सारे करने होते हैं, तो आप उससे ही सीखते हो एंड देन परफेक्ट होते चलते हो। ठीक है, ऐसा ये मत समझना कि ये टफ जाएगा या आएगा नहीं, कैसे बनाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको दी जाती है, उसके बेसिस पे आप इसको बनाते हो। ये इन्फॉर्मेशन में आपको ये कैसे बनाते हैं ये इसलिए बताया है कि आप एकदम नई चीज़ आपके सामने ऐसा आपको ना लगे, क्योंकि मॉडल बनाना ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने तक, आपको समझने तक टेबल्स की एक दूसरे के साथ कनेक्शन, तभी तभी उसके बाद ही आप बना सकते हो इस रिलेशनशिप्स को। लेकिन कैसे बनाना है ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सब डिटेल्स बताई, इतने डिटेल में बताया कि कैसे बनाते हैं हम रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्योंकि समझ में तो आ गया, लेट्स से हमें रिलेशनशिप पता है कि कैसे इन दोनों में रिलेशनशिप है, बट कैसे कनेक्ट करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, इसलिए ये सब चीजें मैंने आपको बताई कैसे कनेक्ट करते हैं ऑल दिस थिंग्स। जनरली सर हम वन टू मेनी कनेक्शन करते हैं यस, सर। वी ऑलवेज प्रेफर वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, लेकिन आपके मॉडल्स में अगर वन टू वन फॉर्म हो रहा है तो कभी कभी आपको वो करना पड़ता है वन टू वन। वो अच्छा डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियोज के बेसिस पे, आपका मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसके बेसिस पे, पर जनरली वन टू मेनी रिलेशनशिप्स ही यूज होती है, यूज करते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, सर हाँ। सर डेटा में डायमेंशन टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल हमें मालूम करना पड़ता है क्या? वो बीआरएस शीट में भी मेंशन होता है कभी कभी, अगर नहीं होता तो कभी कभी हमें डायमेंशन टेबल्स बनाने भी पड़ते हैं ट्रांजैक्शन टेबल के ऊपर से। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ही टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल है, और इसमें कस्टमर की जो है, ये कस्टमर की जगह पे वहाँ पे कस्टमर के नाम है, कस्टमर का एड्रेस है, तो मुझे यहाँ से वो टेबल्स में से वो कॉलम्स निकालने पड़ते हैं और उनका एक टेबल बनाना पड़ता है, फिर वो टेबल को डायमेंशन टेबल यूज करके यूज करना पड़ता है, यहाँ पे बस की रख के। तो उसके लिए अगेन ओके ट्रांसफॉर्मेशन में जाके आप नए कॉलम्स बना सकते हो, राइट। उन टेबल्स को लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स फैक्ट के अंदर का कस्टमर की लेट्स से कस्टमर की जगह पे मेरे पास एक कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ऐसी बहुत सारे 5-6 कॉलम्स इसी ट्रांजेक्शन टेबल में बने हुए हैं या बनाए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये सेल्स फैक्ट टेबल का एक डुप्लीकेट ले लूँगा,
राइट, और बाकी के कॉलम्स निकाल दूंगा, बस कस्टमर के लिए जो कॉलम्स है वो बचे वो कॉलम्स वो रखूंगा और डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा, बन गया मेरा डायमेंशन टेबल। अंडरस्टैंड हो रहा है? देन सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर के जो कॉलम है एड्रेस वगैरह जो वो जो मुझे नहीं चाहिए वो उसको मैं रिमूव कर दूंगा, एंड सिंपली कस्टमर की जो है वो कस्टमर की मैं कनेक्ट कर दूंगा, या जो कस्टमर का मेरा जो टेबल रहेगा उसमें एक इंडेक्स बना दूंगा 1 to 9 1 to वट एवर जितने नंबर रहेंगे, और उस की को मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। ऐसे अलग अलग वेज होते हैं कनेक्टिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डायमेंशन टेबल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। कोई भी कंपनी ऐसी एक ही टेबल में डेटा को स्टोर नहीं करती, वो डायमेंशन एंड ट्रांजैक्शन टेबल के बेसिस पे ही स्ट्रक्चरल वे में ही डेटा स्टोर होता है। डायमेंशन टेबल्स बने ही होते हैं, आपको बस आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से डायमेंशन है कौन से ट्रांजैक्शन है, कीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन से बेसिस पे आप कनेक्शन बना सकते हो, देन यू रेडी टू गो फॉर टू मेक अ रिलेशनशिप्स। ठीक है, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, आपको किसी एक डेटा सेट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको मल्टीपल डेटा सेट्स हैंडल करने पड़ेंगे, उनकी कनेक्शंस खुद से बनानी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली आप परफेक्ट होते चलोगे मल्टीपल डेटा सेट्स पे काम करने के बाद। एक डेटा सेट्स पे बस आपकी कंसेप्ट आपको समझ में आएगी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस आप जैसे जैसे केसेस सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे डेटा सेट्स पे प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आपको और उसमें डिटेल्स पता चलेगा और समझ में आएगा अलग अलग वेज टू डू दिस। ठीक है, सर 2 टेबल है हमारे पास, उसमें कॉमन कॉलम कौन सा है ये हमें ढूंढना पड़ेगा ना? मैं वही बोला ना कि बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट अगर आपको दी हुई होती है तो वहाँ पे कनेक्शन आपको बताया हुआ होता है कि जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को दिया हुआ है कि टेरिटरी टीम में मुझे दिया हुआ है, टेरिटरी टीम दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे वो मेंशन करके दे देंगे कि टेरिटरी टीम में सेल्स टेरिटरी की एक प्राइमरी की है, और दूसरा ट्रांजेक्शन ओके। टेबल जो है वहाँ पे वो बताएंगे कि दिस टेरिटरी की इज द रेफरेंस की और द फॉरेन की। तो यस आपको सर। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यू कैन कनेक्ट दिस टेरिटरी की टू दिस टू एज अ वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है फॉरेन की। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? हेलो, हाँ यस सर, सर। ठीक है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना बस है। इसको थोड़ा एक बार वापस से रिकॉर्डिंग को देखो, वापस से यस ऐसे सर, यस सर। रिलेशनशिप बनाओ, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क होता है होती चीज़ें। जब अपन रिलेशनशिप्स बना के जब रिपोर्टिंग को स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि ये रिजल्ट रिलेशनशिप को बनाने जब हमने बनाई थी तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हम लेंगे ना, कस्टमर से एक कॉलम लेंगे, इस ट्रांजैक्शन टेबल से इस रिटर्न फैक्ट्स के कुछ कॉलम्स लेंगे, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स को लेके हम एनालिसिस करेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि हमने ये कस्टमर से लिया हुआ है तो ये रिलेशनशिप उसमें वर्क हो रही है कि ये कस्टमर का नाम को कस्टमर की के बेसिस पे फिल्टर कर रहा है। इसीलिए मुझे विजुअलाइजेशन में कस्टमर का नाम तो दिख रहा है, पर नाम के बेसिस पे मुझे ऑर्डर क्वांटिटी भी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि कस्टमर की के बेसिस पे वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। वो फिल्ट्रेशन जो बैकएंड में हो रहा है वो की के बेसिस पे, जो रिलेशनशिप बनी हुई है उसके बेसिस पे हो रहा है। ओके, सर बोलो। सर जो हमारा अभी पावर बीआई का कंपोनेंट चल रहा है, जो पावर क्यूरी हमारा हुआ है अभी अभी यस, इसका नाम पावर क्या है? हम पावर पावर प्यूआर्ट। पिवोट, पावर पिवोट। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नो। अपन फिर। सो जाओ, अच्छी नींद आएगी आज। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। Yes.